Welcome, friends. Today we will solve our questions for our new chapter issue, forfeiture, and reissue of shares. In last lecture, I have explained the entries which are to be made in the books of companies for those issue of shares. आज उसी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. See question number 4. What is given? Sitaram Limited issued 20,000 shares of 25 each on 1st of September 2019. The whole amount was payable on application. मैंने बताया था कि there are two ways to issue the shares. One is lump sum. Lump sum means one time payment. And second is in installment. Installment means part payment. For example, company issued share of rupees 20 each. अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है. व्हाट आर दोस टू ऑप्शंस? लमसम एंड इंस्टॉलमेंट. इसका मतलब क्या है? कंपनी कैन डिमांड दिस 20 रुपीज एज वन टाइम पेमेंट. दैट इज कंपनी बोलती है कि जब आप एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं, यू हैव टू पे होल 20 रुपीज इन एप्लीकेशन. या दूसरा कंपनी ऑप्शन दे सकती है आपको. कंपनी ने बोला इस 20 रुपीज का हम डिवीजन कर देंगे. जब हम एप्लीकेशन डिमांड करेंगे, देन फॉर एग्जांपल इट इज 6, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 4, second call 4. So this whole 20 rupees is divided into this 4 installment. The whole 20 rupees is divided into this 4 installment. Application allotment, first call, second call. और भी हो सकते हैं, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल. वो कंपनी के डिपेंड करता है कि कितने इंस्टॉलमेंट कंपनी मंगाएगी. ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं है. ऐसा कोई रूल नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी. ओके. So lump sum, that is one time payment. Installment, that is on part payment. So this is known as installment and this is lump sum. अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, तो कंपनी का शेयर कितने का है? 25. और उसमें लिखा है द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन. मीन्स कंपनी इज डिमांडिंग कंप्लीट अमाउंट ऑन एप्लीकेशन. सो इट इज द केस ऑफ लम सम इशू. और लमसम इशू में सिर्फ फर्स्ट टू एंट्री बनेगी जो हमने उसमें देखी थी. लास्ट लेक्चर में जो हमने किया है, दैट इज एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द कैपिटल. ओके. चलिए, तो हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की.
journal entries in the books of Sitaram Limited. So first entry number 1, bank account debit to, आपको शेयर का नेम नहीं दिया है. अगर शेयर का नेम दिया होगा, दैट इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो वी विल पास जर्नल एंट्रीज विथ नेम. ठीक है, इस क्वेश्चन में नेम नहीं है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट कैसे लिखेंगे? कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 20,000 शेयर्स. एंड पर शेयर वैल्यू कितनी है? 25. So the total amount received by the company is 5 lakh. Narration. Being application money received on 20,000 shares at the rate of 25 each. Entry number 2, share application debit to share capital account. Application money is 5 lakh. Being application money transferred to share capital. Being application money transferred to share capital. Now close this journal. इस जर्नल को क्लोज कर देंगे हम. वो जो एंट्रीज है वो बहुत बेसिक है, उसके बिना ये चैप्टर नहीं बनेगा. This was the entries for lump sum issue. See next question number 5. प्रेम लिमिटेड ऑफर्ड 4,000 इक्विटी शेयर्स. अब देखो यहां नेम दिया है, क्या दिया है?
equity shares of 50 each for the public subscription. Amount was payable 4,000 shares at the rate of 50. Per share value is 50, which is payable application 20, allotment 18 and first call 12. अब यहां कंपनी पेमेंट कैसे डिमांड कर रही है? कंपनी इज डिमांडिंग पेमेंट इन installment. So we will pass journal entry separately for each installment. और नेम दिया है तो नेम मेंशन करेंगे अब हम. Journal entries in the books of Prem Limited. Entry number 1, bank account debit to equity share एप्लीकेशन. मैंने बोला ना नेम दिया है तो हम नेम मेंशन करेंगे. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. नाउ हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 4,000 and application money is 20. 4,000 shares paying 20 each. $80,000. Narration. Being application money received on 4,000 shares at the rate of 20 each. Entry number 2, equity share application debit to equity share capital account. Same 80,000. Being application money transferred to share capital. Now, entry number 3,
सॉरी, नेम लिखेंगे हम इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account. 4,000 into 18. Allotment money is 18. $72,000. Narration. Being allotment money due on 4,000 share at the rate of 18 each. इस एंट्री में हम लिख रहे हैं ड्यू. ड्यू मींस रिसीवेबल. कंपनी क्या करती है, पहले इन्फॉर्म करती है शेयर होल्डर को कि आपको आपके अलॉटमेंट में इतना अमाउंट देना है. तो जो इंफॉर्मेशन कंपनी दे रही है ना कि हमको 4,000 शेयर होल्डर से, मतलब 4,000 शेयर्स पे 18 रुपीज पर शेयर, अकॉर्डिंग टू 18 रुपीज पर शेयर 72,000 टोटल मनी लेनी है, तो वो इसकी एंट्री है इंफॉर्मेशन की. अब जो शेयर होल्डर्स पे करेंगे, मतलब कंपनी को जितना अमाउंट रिसीव होगा, तो उसकी एंट्री बनाएगी. दैट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account. 72,000. Being allotment money received. कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई. अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट मनी की रिसीविंग की एंट्री पास करेगी. सो दिस इज एंट्री फॉर रिसीविंग. नेक्स्ट, एंट्री नंबर 5. What will be entry number 5? That is for first call. Equity share first call account debit to equity share capital. 4,000 into 12. First call money is 12. 48,000. Narration. Being first call
money due on 4,000 shares at the rate of 12 each। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको लिखना है, बट ये आपकी समझ के लिए है, एग्जामिनेशन में इसको यूज नहीं करना है हमको। ये अभी समझ के लिए है कि ये अमाउंट आ कहां से रही है, जो हम यहाँ पे 48,000 लिख रहे हैं, ये अमाउंट आ कहां से रही है, उसके लिए लिखा जाता है। एंट्री नंबर 6, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये एंट्री है फर्स्ट कॉल रिसीविंग की। नरेशन, being first call money receive। So 3 installment, total 6 entries, 4 installment, then there will be 8 entries, 2 installment, then there will be 4, just double। Okay, see next question number 6। बेसिकली ये क्वेश्चन होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, बट इसका एक कुछ पोर्शन है जो मैं बताऊंगा, बाकी आप बनाएंगे। Mohit Limited invited application for 4,000 shares of 20 each, so 40,000 shares, sorry, 40,000 shares at the rate of 20। तो शेयर्स की वैल्यू है 20 और कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 40,000 शेयर्स। देखिए अब क्या लिखा आगे, पेमेंट वर मेड एज फॉलो, और ये पेमेंट कैसे हुआ है, अगेन ऑन इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन 6, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 5, फाइनल कॉल। नाम है ना सिर्फ ये फाइनल कॉल, इसको सेकंड कॉल भी बोल सकती थी कंपनी, पर कंपनी को लगा कि हमको फाइनल कॉल लिखना है तो फाइनल कॉल लिख दिया उसने। 4 हो गया, टोटल ऑफ दिस इज 20। तो ये तो आप बना लेंगे, क्वेश्चन मेन अब है जो मैं बता रहा हूं आपको। ऑल शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड। नाउ कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू 10,000 rupees। 1,000 fully paid up share were also issued to the promoters for their services। अब क्लास 11th में आपने promoters पढ़ा है। Who are promoters? Promoters are the person, individual, group of person, company, bank, anyone who establishes company। जो कंपनी को establish करने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं promoters। Who establishes company। तो आपके कंपनी के बिहाफ पे कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने सर्विसेज के लिए कुछ ना कुछ फीस मांगेंगे ना। तो इस फीस के बदले कंपनी ने क्या दे दिया उनको, कैश नहीं देके शेयर्स दे दिया। ठीक है, कैश नहीं देके क्या दिया है, शेयर्स। और कितने शेयर्स दिए हैं, 1,000, और हर शेयर की वैल्यू कितनी है, 20। मेरे को यही 2 चीजों की बस एंट्री बतानी है और कुछ नहीं, बाकी पोर्शन आप खुद सॉल्व करेंगे। उसमें लेजर अकाउंट्स वगैरह बनाने बोला है, दैट डजंट रिक्वायर।
एंड यू डोंट हैव टू मेक एनी ओपनिंग बैलेंस शीट वगैरह, ये सब हम लास्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होता है ये बताऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही बनाएंगे। चलिए तो इसकी एंट्री बनाते हैं। मैं सिर्फ लास्ट टू, कॉस्ट ऑफ इशू और प्रमोटर को जो शेयर्स दिए हैं उसके लिए एंट्री बता रहा हूं। इसके बाद आप बाकी पोर्शन की एंट्री आप खुद बनाएंगे। journal entries in the books of Mohit Limited. So first entry for cost of issue of share amounted to 10,000, तो इसको हम लिखेंगे cost of issue debit to बैंक अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, जैसे सैलरी पे करेंगे तो सैलरी टू बैंक, वैसे यहाँ पे हमने शेयर इशू करने के लिए एक्सपेंसेस पे किए तो कॉस्ट ऑफ इशू टू बैंक, अमाउंट इज 10,000। being amount paid for issue of shares। सेकंड, अब जो हमने शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किए हैं तो इसको क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्यों लिखते हैं ऐसा, सिंपल सा आंसर है इसका। प्रमोटर्स, मैंने जैसे शुरू में ही बताया, प्रमोटर्स एस्टेब्लिशेस कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना। तो हमने क्यों पे किया है, एस्टेब्लिश करने के लिए एक फीस पे की है, इसलिए इसको कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। टू शेयर कैपिटल, और इसको हम पे कैसे कर रहे हैं, शेयर्स के थ्रू, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग 1000 shares at the rate of 20 each issued to promoters of the company। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1000 इंटू 20,000 रुपीज। नाउ remaining question is homework for your practice। Thank you friends, meet you all in our next lecture with some new varieties of questions। Thank you।